Hey viewers, welcome back to my channel. As we have discussed that we have to complete the series of B.Sc second semester topic, that is fungi. Already we have completed the topic, that is where we discussed about the thallus structure, how a fungus looks like. Today I am going to tell you about what are the general characteristics. Usually according to NEP ये 5 marks questions में आ सकता है. What are the general characteristics of a fungus? So let's start. जैसे कि we have already discussed, fungi are the eukaryotic organisms. Eukaryotic organisms कौन होता है? जिनके पास प्रॉपरली एक न्यूक्लियस होता है along with प्रॉपर मेम्ब्रेन. एक न्यूक्लियस जो कि एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है. Here it is a nucleus, so it is properly covered by a membrane called as nuclear membrane. Okay, so जब एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रॉपर न्यूक्लियस एंड वो एक नॉर्मल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. और क्या होता है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास? Usually it contains all the membrane bound organelles. Membrane bound organelles means जिन organelles के पास एक double membrane structures present होता है, like our mitochondria, Golgi bodies and endoplasmic reticulum. A fungi contains all this type of double membrane bound structures. Along with this, it contains multiple ribosomes, and that ribosomes are usually 70S type, where in the eukaryotic organisms the ribosomes contain 70S, like higher organisms, animals. Samely, fungi also contain the 70S ribosomes. Next one, the fungi are achlorophylous. As we have discussed before कि fungi के पास chlorophyll absent होता है. So जिनके भी पास chlorophyll absent होता है वो लोग कभी भी खाना नहीं बना सकते. So those organisms are called as achlorophylous, and to complete their need or to complete their need of food and energy, they have to absorb the nutrients or the food from other organisms. And usually what they do, they secrete some exoenzymes, or you can say it as external enzymes. They secrete some external enzymes like hydrolases, lyase, transferase, oxidoreductase. Those kind of enzymes, what they do, in case this is the food material and fungus secretes some kind of enzymes which will divide this food into very small fragments or into simple food, then it is ingested, or you can say absorbed by the fungus. And after using that, the fungi can get their food and they can prepare their energy by using mitochondria. Usually fungi store their food as in the form of glycogen, and sometimes they also store it in the form of oil globules and in the form of lipids. Like we always see as a vegetables पे, fruits पे, breads पे usually fungus grow करते हैं, and what they do, they secrete some kind of exoenzymes and degrade that food or complex food into simpler one and absorb that. Nextly, उनका जो वेजिटेटिव बॉडी कैसा होता है हमने देखा था, दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर. जब वो यूनिसेलुलर होते हैं ये सेम थैलस में बोथ फंक्शंस कैरी करते हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी, बट इनका जब वो डेवलपमेंट मल्टीपल हाइफास के थ्रू, ब्रांच स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, दे आर कॉल्ड एज हाइफा. एंड मल्टीपल हाइफा मिलके क्या बनाते हैं, दे विल प्रोड्यूस ए mycelium. Some fungi are macroscopic, that means those who can seen by naked eyes, that is nothing but
दे आर द मशरूम्स. दे आर नॉन वास्कुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स फंजाई यूकैरियोटिक तो है बट इसके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं है. दैट मीन्स नो जाइलम एंड नो फ्लोएम विल बी देयर इन द फंगस. अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखें कि फंगस का सेल वॉल, वो जो सेल वॉल होता है ये सिमिलर टू प्लांट होता है बट इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल पिगमेंट और स्पेशल मटेरियल दैट इज कॉल्ड काइटिन. सम फंगाइस आर मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि हम देखें कि ये फंगस के और मशरूम्स के तरह जो हमें इजीली विजिबल हो सकते हैं. तो उनका भी कॉमन वॉल होता है और कॉमन मटेरियल जिससे सेल वॉल बनता है दैट इज़ द काइटिन, जिसको हम और भी बोल सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. इसके साथ क्या होता है, आइदर सम ग्लूकान एंड सम सेल्यूलोज मिलके प्लांट सेल का सेल वॉल बनता है. अनदर components that is chitosan and mannans are also present in the cell wall of some fungus. ये हो गया उनका सेल वॉल का. और उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनके पास जैसे कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट्स होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, दे कंटेन सम एर्गोस्टेरॉल. ये जो फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर है इसे अगर हम देखें ये ऐसे क्रॉस लिंक पॉलीमर से बना होता है जो कि β13 एंड β16 ग्लूकान का एक क्रॉस लिंकेज होता है विच विल प्रोवाइड ए प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई, दैट मीन्स वो कैसे अपना खाना और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं. दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, सैप्रोफाइट, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक. When they are called as saprophyte, that means those who can grow on the dead bodies or dead or living material. इधर आप लोग देख सकते हो it is a insect और बोल सकते हैं dead insect, जिसके ऊपर के बहुत सारा फंगस ग्रो करके वो क्या करता है, सेम अपना एंजाइम सिक्रेट करता है एंड वो एंजाइम्स के प्रेजेंस पे इसका जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब डिग्रेड हो जाता है एंड इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय फंगस. इजीली वो उसको खा सकता है एंड दे विल ओवर क्लीन दिस एरिया कंप्लीटली. दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ फंगस आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, जो कि ऐसे डेड बॉडीज को खा के वो सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं. जब हम बोलते हैं कि पैरासाइट्स, दोज फंगस आर पैरासाइट्स विच ग्रो ऑन ए लिविंग होस्ट, उनके बॉडी में ग्रो करके दे विल एब्जॉर्ब देयर फूड एंड न्यूट्रिशन एंड कंप्लीट देयर ओन फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट. जैसे कि इधर देख सकते हो एक प्लांट के ऊपर फंगाई ग्रो किया है. ये फंगस क्या करेगा, प्लांट का जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसका शुगर कंटेंट है वो क्या करेगा, उसको लेके एब्जॉर्ब करेगा और अपना फूड का नेसेसिटी कंप्लीट करेगा. जब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक के बारे में, सिम्बायोटिक मीन्स वो होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल. दैट मीन्स अगर एक फंगाई किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रो करता है दे विल अल्टरनेट देयर बेनिफिट्स. फंजाई भी उसको कुछ बेनिफिट्स देगा एंड द सेम बेनिफिट्स इट विल टेक फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल होता है, एक है लाइकेन और एक होता है माइकोराइजा. लाइकेन बच्चों क्या होता है, जो हमारे एल्गी हैं और फंजाई वो कंबाइनली मिला के बनता है लाइकेन. ऐसे रॉक्स में देखे होंगे, कभी ट्रीज में देखे होंगे. तो ये जो लाइकेन होता है उसमें क्या होता है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है जिसमें फंजाई एल्गी को एक ओवरऑली मॉइस्चर देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है एंड बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. और इसके रिटर्न में एल्गी क्या करता है, फंगाई को प्रोवाइड करता है फूड एंड फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी को एक प्रोटेक्शन एंड इट विल ऑल्सो गिव द न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को
प्रोवाइड करता है। तो ये बन गया एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें algae को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं एंड फंजाई को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ही और एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। इधर देख सकते हो कि मल्टीपल रूट्स सिस्टम इधर दिखाया गया है। उसी रूट्स के आसपास एक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है जहाँ की तुम लोग देख पाओगे देयर इज द फंगस। ओके, ये जो फंगस है वो क्या होता है यूजुअली, ये जो फंगस होता है ये क्या करते हैं, दे विल ग्रो अलोंग विथ दिस रूट सिस्टम एंड वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है एंड इनडायरेक्टली वो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो ये फंजाई को प्रोवाइड करते हैं। तो सेम रिलेशन हियर ऑल्सो, द mycorrhizal association means fungi plus the root system of higher plants। ओके, जिसमें फंजाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वो प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा और प्लांट्स अपना जो फूड सिस्टम है वो फूड से कुछ फूड फंगाई को ट्रांसफ़र करेगा। अगर हम देखें कि फंजाई का रिप्रोडक्शन, इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे बट जनरल कैरेक्टर्स में भी तुम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा। सो सिंपली राइट डाउन दिस फ्यू पॉइंट्स, वी विल डिटेली और elaboratively we will study this reproduction of fungi chapter in some another session. So here a fungi can do the reproduction in both sexual and asexual, means here if अगर कोई फंगस खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं टेलियोमॉर्फ। याद रखना, when a fungus only do reproduction by sexual process that is called टेलियोमॉर्फ। अगर वो एसेक्सुअल प्रोसेस में रिप्रोडक्शन करता है उसे हम बोलते हैं एनामॉर्फ। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड में हो सकता है। एसेक्सुअल मोड्स में यूजुअली फ्रैगमेंटेशन, दैट मीन्स फंगाई का कोई भी पार्ट टूटने से वो एक दूसरा फंगस बना सकता है एंड बहुत कॉमन है सोमैटिक बॉन्डिंग, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। एक मदर सेल से एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो आगे जाके एक फंगस बनाता है। अकॉर्डिंग टू दैट fissions also, when a fungus will divide into two pieces and this division will be carry forward up to multiple generations। जैसे कि मैंने बोला ये पूरा रिप्रोडक्शन अलग से डिटेल सेशन में पढ़ेंगे। एंड अगेन एसेक्सुअल मेथड्स में और एक चीज़ आता है जिसमें कि वो बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। सी, इसमें हम देख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पे भी एक फंजाई का एक माइसेलियम और एक हाइफा टूटा है उधर से एक दूसरा माइसेलियम बन सकता है। हियर वी कैन सी द बर्डिंग, हियर फ्रॉम द मदर सेल ए स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैज बीन डेवलप्ड एंड जितना भी कंटेंट एक मदर सेल में होता है वो सारा कंटेंट डॉटर सेल को ट्रांसफ़र होता है एंड वो डिवाइड होके एक न्यू फंगस में कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज द मेथड ऑफ fission where one fungus will multiply and divide into two. Again further it will divide into 4 structures and it will give rise to 4 different fungi. This system or this process is called as binary fission. Here these are the special structures called as sporangium, जिससे कि बहुत सारे स्पोर्स प्रोडक्शन होता है। तो ये जो 4 मेथड्स हमने देखे, ये 4 मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इधर एक पर्टिकुलर गैमेटेंजियम और जो कि गैमेट्स बनाता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उन दोनों गैमेटेंजिया के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है एंड देन इट विल लीड टू द फर्दर रिप्रोडक्शन मेथड। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर गैमेट्स डायरेक्टली फ्यूज हो रहे हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, दैट मीन्स सिमिलर गैमेट्स विल फ्यूज, एनाइसोगेमी में डिसिमिलर गैमेट्स विल फ्यूज। ओके, जब हम बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में, इधर बोथ द फीमेल गैमेटेंजियम एंड मेल गैमेटेंजियम विल कम इन ए कॉन्टैक्ट बाय ए पर्टिकुलर ट्यूब। इधर क्या होता है, मेल
गैमेटेंजिया, फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब इंसर्ट करता है एंड बाय दिस ओनली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर गेटिंग फ्यूज्ड। बस एक सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमेटेंजियल कांटेक्ट। जब बोथ द gametes will combinedly or completely getting fused, this is called as gametangial copulation. Okay, and the last step, that is the spermatization. Here there is a single hyphal structure where that one structure is called as male hypha and the another structure is called as female hypha. इधर क्या होता है, मेल हाइफे में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दो स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्पर्मासिया एंड उसके पास एक फीमेल हाइफा का डेवलप होता है जो कि उस मेल हाइफा का स्पोर को कैप्चर करता है एंड इधर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू मियोसिस। ओके, and the last process we can say somatogamy. Here the two different male hypha and female hypha will eventually fuse and their gametes will getting fused. This is the just overview. I will discuss properly in a next full video of reproduction. So वो लोग क्या करते हैं, जो combinedly जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद डिवाइड होके वो मल्टीपल स्पोर्स बनता है। तो जब सेक्सुअल मेथड्स में कुछ स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स है एग्जाम्पल ओस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। बट जब एसेक्सुअल मेथड्स में स्पोर बनता है, उनका एग्जाम्पल है स्पोरेंजियोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड कोनिडिया। स्पेसिस के हिसाब से कुछ स्पेसिस सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन करते हैं एंड कुछ स्पेसिस एसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है एक फंगस का, वो डिवाइड होता है और वो कन्वर्ट होता है इनटू हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड कंडीशन। जब वो सिंपली गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, जब वो जाइगोट बनते हैं तो वो हो जाते हैं डिप्लॉइड। एगेन जाइगोट के अंदर जब म्यूसिस होता है इट विल बी एगेन कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड। तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चलता है, जो कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ स्टेजेस में मल्टीपल हो सकता है। तो ये था ओवरऑली एक फंजाई का जनरल इंट्रोडक्शन कि फंजाई का क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होता है। अगर क्वेश्चन आए तो फंजाई का जनरल कैरेक्टर्स में उनका न्यूट्रिशन, उनका रिप्रोडक्शन, उनका मोड ऑफ लिविंग, एवरीथिंग वी हैव टू राइट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। कीप वॉचिंग, वी विल डिटेली कवर ईच टॉपिक्स लाइक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।